If there are any instructions provided by your school teacher, specifically related to the English subject, you can raise hand and you can tell. Okay, fine. So let's begin our session. Now your entire book is the syllabus. Your entire book is your syllabus, and okay, check my voice is audible. Yes, sir. Okay, okay. Now we are starting with the preparation of entrance examination. Now you know that you might be having idea. Yes, Kanaka Shinde. You have idea like your English examination will be for 25 marks. So as you have 4 subjects, 25, 25, 25 and 25. Now you have to prepare accordingly. What is the first step that is required? First step is the planning process. You must be able to plan very well. It is said with a plan, you can defeat even a genius person. So this planning process is so important. And Arun, just off your video. Arun, just off your video. So this planning process is important. Now your overall textbook, if you see, there are 4 units, 1, 2, 3 and 4. Now you have to plan which are the important chapters, which are the omitted topics, which are the topics which are going to be there. Then you have to think in a different manner. Now, if you are thinking in the same manner as you are thinking about your regular examination, then your plan is going to fail. Like no need of preparing brief answers, no need of preparing the objective type questions. This method is different. Now, do you have about idea about MCQ type questions? If yes, raise your hand. Okay, what exactly you have in MCQ type questions? Yes, Aftab. Okay, Prachi Desai. Fine. One question will be asked and you have 4 options, right? So first, second, third and fourth. So there is no probability or no chance of guessing the answers widely without thinking. First process is planning process. After planning everything, now you have to plan about your entire syllabus, that is unit 1, 2, 3, 4. Plus you have to plan about grammar topics also. Then you have to plan about writing skill. But as MCQ type test is going to be conducted, I don't think so that writing skill will be included in it. As writing skill carries 5 marks per question, so such questions won't be asked. But yes, they can frame any question related to writing skill, like related to the formal letter, related to the rules of report writing, speech writing, it is possible. So you must prepare accordingly. So writing skill should be given less weightage. You can give more weightage for your chapters and grammar part. Chapters and grammar part equally. Now related to the grammar part, which questions can be asked? This is the first question which is arising in mind of many students. So I will let you know the grammar topics, कौन से grammar topics है जो तुम लोग को study कर रहे हैं, किस तरीके से study करने हैं, कौन सा pattern है, कौन सा method है, every sort of discussion we are going to do. But what I want is the lecture to be interactive, that
it should not happen like even only I am speaking. There should be conversation from your side also and you should ask questions also. तो तुम लोग को भी कुछ questions पूछने हैं, तुम लोग की जो doubts हैं वो clear किए जाएंगे, ठीक है? And इस तरीके से तुम लोग अपने questions पूछ के सारे doubts को clear कर सकते हो. तो चलो हम लोग textbook के help से we will start practicing and we will start uh, doing the in detail analysis of particular chapter. इस पर्टिकुलर सिनारियो में डू यू हैव एनी डाउट? इस पर्टिकुलर मोमेंट में तुम लोग को कोई डाउट है? लाइक यस, आई हैव लॉट ऑफ डाउट्स इन माय माइंड और देयर इज क्वेरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. इफ यस, यू कैन आस्क. आई एम आस्किंग इन द स्टार्टिंग पार्ट itself because accordingly the queries will be solved and accordingly lecture or the session will begin. As I'm going to start with the session part, जैसे मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, I won't stop. कंप्लीट जो टाइम है हम लोग, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा एंड तुम लोग सुनते जाओगे. तुम लोग के डाउट्स है तो तुम लोग बीच में पूछ सकते हो, बट नॉन स्टॉप सेशन होगा. ऐसे ही 3-4 सेशन जो भी है, वी विल हैव नॉन स्टॉप सेशंस. ओके, मोहित देसाई. Sir, actually, I was not able to join on time because I had net problem. No So problem. have you taught anything? Considering that, I was considering it like there are a few members they have not joined yet. So I was just discussing about the planning process and all. Not started yet. Not started with the complete part. अभी तक वो start नहीं किया है. Yes, Kitki. Thank you, sir. Sir, I have the question that. Hello. Yes, it is audible. You can speak. हाँ सर, टेक्स्ट बुकचे रिलेटेड जे आपले लेसन्स आहेत त्याच्यावरती MCQ येतील का? Yes, what obvious. Entire portion you have to study. The syllabus which is prescribed. पूरा study, पूरा prepare करना है, ठीक है? चालेल. स्टार्ट करते हैं. मैं एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ. देन आई विल मूव टुवर्ड्स ग्रामर पार्ट. क्या क्या स्टडी करना है, क्या नहीं स्टडी करना है, इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले. 2-3 सेशंस होंगे और तुम लोग के 2 और 3 मोर सेशंस विल बी कंडक्टेड. ड्यूरिंग दैट सेशन हम लोग आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस, राज पाटिल. Sir, will paragraph be given? नो, पैराग्राफ पैसेजेस नहीं दिए जाएंगे तुम लोग. सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस, जैसे एमसीक्यू टाइप टेस्ट में होता है, ठीक है? ओके, नाउ दिस इज योर टेक्स्ट बुक. You have to do planning. That is planning process बहुत important है. Very well plan करो इसे. Give your 20% time for planning process, 80% for studying part. Studies important है, but उतना ही ज़्यादा planning important है. Planning अगर fail होता है तो तुम लोग की studies भी fail होंगी. But if you have a good plan, तुम लोग बहुत अच्छे से study कर सकते हो कम time में. It is not required. Comparison is not necessary. That your friends are studying for 7 to 8 hours and you are studying for 3 to 4 hours. Doesn't matter. If you have planned well, but obvious you are successful. So planning किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है? First of all, plan about your syllabus. तुम लोग का syllabus कितना है, कौन से टॉपिक्स है, ये प्लान करो, ठीक है? नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन पीरियड. यू नो इट वेरी वेल. तुम लोग के एमसीक्यू 100 मार्क के लिए होंगे, 2 आवर्स का टाइम तुम लोग को दिया जाएगा, ये सारी डिटेल्स तुम लोग को पता है. बट what exactly amount of time or what exactly time that you can allot for English subject. तो English as a subject के लिए तुम लोग कितना टाइम दे सकते हो, ये प्लान करो. For example, if you are planning like this week I will study English 2 days, another week 2 days, another week 2 days, whatever तुम लोग का जो भी प्लान होगा, तो प्लान अकॉर्डिंगली कि 7 days है, फॉर एग्जाम्पल 6 days में इंग्लिश का स्टडी करने वाला हूँ. 6 days में से 3 days and 3 days इसे डिवाइड करो. I will rather say 3 days नहीं तो 2 days या फिर let's say chapters के लिए 2 days दो and grammar के लिए 3 days दो, तो भी एक दिन बच गया. समझ में आ रहा है? 3 days for grammar, 2 days for chapters. तो 2 days में तुम लोग को complete chapters cover करने. फर्स्ट डे तुम लोग का जो पहला दिन होगा, इसमें तुम लोग क्या करोगे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 करोगे. यूनिट 1 एंड यूनिट 2. Second day you will plan for unit 3 and unit 4. See, it is very easy method, काफी easy planning है. My work is to recommend. मेरा सिर्फ काम है तुम लोग को recommend करना, suggest करना. Whether to follow it or not, it depends on you. It's your choice.
You can have your method, you can plan yourself, and you can do. You are much intelligent in this particular process. So first day you can start with unit 1, unit 2. Second day you can start with unit 3 and unit 4. You can complete it. थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे जो 3 दिन बचेंगे तुम लोग ग्रामर पे फोकस करो. आई वांट कि तुम लोग ग्रामर पे ज्यादा फोकस करो बिकॉज ग्रामर के क्वेश्चंस तुम यू हैव टू थिंक एंड आंसर. चैप्टर्स तुम लोग के सामने है. सामने मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग को कॉपी करना है. नो, नॉट लाइक दैट. सामने यानी कि यू नो इट वेरी वेल. Whatever is there in the chapter, you know the entire story because you have attended the lectures very well. So if you have attended the lectures in a very good manner, if you know the story, you can answer by thinking process. This thinking process will help you to answer the questions related to the chapter part. But about grammar, you need golden rules of grammar. So collect golden rules. It's high time now. If you have it, very well. You have done well because it is always said your hard work pays off. So, but obvious in the entire year, if you have worked hard enough, so that is going to benefit you. So collect golden rules of grammar, read it. 3 days you have. What you can do, 2 days you are going to read golden rules, you are going to by heart it, and third day you can practice examples. So practicing examples is a very good part. Internet, we are living in the 21st century and internet is the best source, I will say, for the collecting the materials. So there are a lot of ample of stuff available on the internet. So you can surf, you can browse, and you can get a lot of information. So typically don't go by traditional method. You will only get you will be only grasping the bookish knowledge. So books are important, but obviously there is a lot of stuff available on internet which you can use. तुम लोग को रेडीमेड एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं, बट डोंट वरी, आई विल सी, आई विल प्लान फॉर इट. इफ इट इज पॉसिबल तुम लोग के लिए एमसीक्यूज क्रिएट कर सकता हूँ, बट दैट विल बी अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट. वो तुम लोग के लिए मॉक टेस्ट होने वाला है बिकॉज नॉट नीडेड कि सेम एमसीक्यूज will be asked during the examination. So it's a part of practice. So 2 days 3 days method समझ में आ गया? If yes, just put a thumbs up. See, this planning process I'm doing for you. Anyways, you can do it for yourself. Very good. So now you might be thinking, what about the last day? Last day पे क्या करोगे? तो last जो दिन होगा यानी कि 6th day होगा, what you can do is you can plan about something about writing skill. So as we consider, let us consider that writing skill is not included, but few questions can be framed related to the writing skill part. Are you getting? For example, if I can create a particular question, write a letter to the municipal commissioner related to, let's say, improper water supply in your vicinity. तो हम लोग के vicinity में improper water supply है. So what would be the subject? Option A, option B, option C, option D. So option A, B, C, D are they're tricky. काफी tricky होते हैं. Much similar. Okay, when the difficulty level is so high, it is much similar. So you have to think about it. तुम लोग को सोचना है कि ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, कौन सा appropriate subject होगा. Sometimes the D option is none of these, or sometimes the option can be both A and B. So you have to think wisely. None of these option है या नहीं, ये सोचना है तुम लोग. तो ये जानबूझ के दिया जाता है तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए. Both A and B, ये भी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है. So you don't have to get into that trap which is created for you. You have to think wisely. Next, 6th day तुम लोग राइटिंग स्किल को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. कौन से फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है, उसको स्टडी कर. बचा हुआ पूरा पार्ट 6th डे रिवीजन के लिए रखोगे. यस, रिवीजन इज नेसेसरी, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. तो तुम लोग को रिवीजन करना है. जो भी तुम लोग ने 5 डेज में कवर किया उसका ओवरऑल रिवीजन करोगे. मॉक टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने हो सके उतने एमसीक्यू के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो. मॉक टेस्ट क्या होता है? एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मॉक टेस्ट? रेज योर हैंड. सर रिवीजन के लिए टेस्ट होते हैं वो, किस चीज के मतलब लिए? हमें कितने रिवीजन के लिए, मतलब हमें कितना पता कितना हमें आता है उसके लिए.
कितना आता है ये टेस्ट करने के लिए. वेरी गुड. तो वी कैन कंसिडर इट एज प्रैक्टिस टेस्ट. हम लोग उसे प्रैक्टिस टेस्ट कंसिडर कर सकते हैं, राइट. इट कैन बी कंसिडर एज प्रैक्टिस टेस्ट. उसको हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट बोल सकते हैं. तो ये होते हैं मॉक टेस्ट. तो उसको जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट इट, and you will get idea like this kind of questions can be framed. Sometimes questions are tricky, तो उसमें ट्रैप में नहीं आना. ठीक है. तो ये हम लोग का था डिस्कशन, ओवरऑल डिस्कशन. दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो तुम लोग को क्या क्या करना है, यूनिट 1 to 4 पूरा टेक्स्ट बुक. यू हैव टू डू ग्रामर पार्ट, ग्रामर पे फोकस करो. एंड बचे हुए पार्ट को राइटिंग स्किल के लिए हाफ डे भी दोगे, इट इज इनफ, बिकॉज राइटिंग स्किल के चांसेस बहुत कम है. 10% भी, 8 to 10%. So it will, I don't think so it will be included, but still you have to do preparation. पूरा करो, 100% preparation करोगे तो that is going to be beneficial for you. ठीक है. Yes संस्कार. सर राइटिंग स्किल्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताओगे क्या? Just now I gave example कि what would be the subject if this is the question. तो subject के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, which is the appropriate subject here. तो subject कैसा होना चाहिए, short and sweet होना चाहिए. 3 to 4 लाइन्स में अगर लिखते हो तो दैट इज इजी एंड काफी प्रॉपर होता है. यस मोहित देसाई. Hello, sir. Yes. Sir, can they ask unseen passage? Passage. Because all boards are there, no unseen passage. Unseen passage. No, MCQ है ना पूरा, तो फिर unseen passage क्यों देंगे वो? सर नहीं, unseen passage देके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके 4 ऑप्शन होंगे. Means Might be synonym possible. word. Might be possible, but see, they have declared, your state board has declared that the overall examination will be on the basis of your syllabus. तुम लोग का जो पोर्शन है उसकी बेसिस पे होने वाला है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. सो चांसेस है कि तुम लोग को जो सिलेबस है उसे प्रॉपर्ली स्टडी करो. यूनिट 1 to 4 एंड ग्रामर पार्ट, इसको प्रॉपर्ली स्टडी करना. पक्का सर करना. यूनिट 1 to 4 में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे देख सकते हैं वो? मतलब पहले तो पैसेज होते थे ना. पहले पैसेज होते थे. आई कैन क्रिएट क्वेश्चंस में क्रिएट कर सकता हूँ ना एमसीक्यू. इट इज इजी. फॉर एग्जांपल, हु इज द राइटर ऑफ द थीफ स्टोरी? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी Ruskin Bond. ऑस्कर वाइल्ड, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी क्या वॉल्ट विटमैन. तुम लोग को सिलेक्ट करना है उसमें से. पता होना चाहिए कि थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है भाई. समझ में आ रहा है? Yes, हाँ. sir. सर पर Okay. पहले पैराग्राफ के बेसिस पे होते थे ना, इसलिए मतलब तो तुम सभी लोग को बोर्ड के पैराग्राफ, लिए. सी डोंट बी रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर टॉपिक. तुम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो. बी ओपन माइंडेड. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी राइटर से रिलेटेड आ सकता है. क्या राइटर पर्टिकुलर वॉल्ट विटमैन, क्या ये राइटर में कुछ खासियत, उनके कोई स्पेशल फीचर था? तो हाँ था. क्या स्पेशल फीचर था उनमें? डू यू हैव आइडिया? उन्होंने फ्री वर्स फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया. कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि फ्री वर्स क्या होता है पोएम में. तो ये हो सकता है. लाइक हु यूज्ड टू राइट पोएट्री और द पोएटिक फॉर्म इन अ वेरी अनयूजुअल मैनर. ऑप्शन ए बी सी डी. यू विल बी कंफ्यूज्ड बिकॉज दिस क्वेश्चन इज क्रिएटेड. तुम लोग ने इतना ही सोचा नोट्स में, पैसेजेस में क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, इंग्लिश वर्कशॉप या फिर तुम लोग के वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस होते हैं उतने ही करने. अब नोट्स पे फोकस मत करो. यू कैन रीड, नो प्रॉब्लम, बट डोंट फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर टिपिकली गिवन इन नोट्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलर फॉर्मेट. स्टार्टिंग टू एंड जितने टेक्स्ट बुक्स रीड करोगे उतना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में हेल्प होगा. आर यू गेटिंग? यस. और सर कट वाला सिलेबस आएगा कि नहीं? ओमिटेड पोर्शन. हाँ ये वही सर. स्टेट बोर्ड हैज डिक्लेयर कि ओमिटेड पोर्शन नहीं आने वाला तुम लोग को. बट स्टिल सेकंड सेशन में तुम लोग को मैं कंफर्म बताऊंगा कि ओमिटेड पोर्शन करना है या नहीं करना है. सर पोएमचे फिलिंग द ब्लँक्स पण येऊ शकतात. आ सकता है. फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है. एंड 4 नीचे ऑप्शंस होंगे. तुम लोग को ओएमआर शीट होने वाला है. ओएमआर शीट पे तुम लोग को फिल करना है. ठीक है संस्कार? नो सर, पहले का ही डाउन करना है. ठीक है, कोई बात. तो अब यूनिट 1 को हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं. ओवरऑल मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है. अब एक मेथड है, तुम लोग को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे. मार्केट में स्टेशनरी के शॉप में यू विल गेट रेड पेन.
तुम लोग को रेड कलर का पेन मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो ये रेड पेन को परचेस करो. नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाई टू परचेस रेड पेन, कैन वी यूज हाइलाइटर? यस यू कैन यूज, बट हाइलाइटर का जो पॉइंट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ना, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी आ जाती है उस हाइलाइटर में. सो बेटर इज रेड पेन को सिलेक्ट करो. नाउ व्हाई अगेन रेड पेन? सो डोंट बी कंसर्न अबाउट इट, उस पर फोकस मत करो कौन सी कलर का पेन है, डजंट मैटर. बट रेड पेन इट इज सेट कि तुम लोग रेड पेन से जो भी चीजें अंडरलाइन करते हो वो ज्यादा टाइम तक तुम लोग माइंड में ग्रास्प कर पाते हो. तो इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग इट विथ पेंसिल, रेड पेन इज ऑलवेज बेटर. तो एक रेड पेन लो एंड तुम लोग जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है तुम लोग को वो टेक्स्ट बुक में मार्क करना चालू करो, उसे अंडरलाइन करना चालू करो. जो जो चीजों को तुम लोग अंडरलाइन करोगे वो चीजें तुम लोग के माइंड में फिट होंगी. समझ में आ रहा है? वो चीजें माइंड में फिट होंगी. तो दैट इज द मेथड फॉर अटेम्प्टिंग MCQ टाइप टेस्ट. MCQ टाइप टेस्ट के लिए सेम मेथड अडॉप्ट मत करो. डोंट यूज सेम स्टाइल फॉर अटेम्प्टिंग MCQ टाइप टेस्ट जो तुम लोग रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हो 80 मार्क्स के. पैसेजेस, then your poetry part, appreciation of poem, writing skill and grammar. Don't use the same method. अगर ये same method use करते हो फंस गए तुम लोग. क्यों फंस गए? Because you are practicing in that way which is not useful. कोई यूज नहीं उसका. तो इसमें इन डिटेल एनालिसिस करना है तुमको. इन डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं बताता हूँ. तुम लोग रेड पेन लोगे एंड टेक्स्ट बुक लोगे. टेक्स्ट बुक का फर्स्ट टॉपिक जो है वार्मिंग अप, यहाँ से 1.1 इससे चालू करो. जितने भी एक्टिविटीज है एक बार सॉल्व करो. ठीक है, तुम लोग ने सॉल्व ऑलरेडी किया होगा तो इसको देख लो, हो सके तो सॉल्व कर लेना. पेंसिल लो, पेंसिल से सॉल्व करो, दैट इज गुड. टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करो, दैट इज ओके. एनीवेज टेक्स्ट बुक बाद में तुम लोग के काम नहीं आने वाला, तो उसको यूज करो. डोंट थिंक अबाउट द रद्दी वाला और डोंट थिंक अबाउट योर ब्रदर सिस्टर. हाँ उनके बारे में सोच सकते हो बट ऑब्वियस कि नेक्स्ट टाइम. बट अभी तुम लोग के MCQ के बारे में सोचो कि व्हाट इज बेनिफिशियल. तो पूरे बुक को कलर भी करोगे तो डजंट मैटर. Where the mind is without fear, इसके बॉक्स को भी कवर करना है. ऐसे रेड पेन लेना है एंड अंडरलाइन करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूं. देखो, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941. Question can be framed related to birth date and the sad demise also. ये भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर इनका सैड डिमाइस कब हुआ था, यानी कि डेथ कब हुई थी. 1941 ये ईयर में हुआ था. ये ऑथर थे जिन्होंने कौन सा ऑथरशिप किया था. उनकी एक बहुत अच्छा वर्स था गीतांजलि नाम का. उन्होंने ब्यूटीफुल वर्स क्रिएट किया था गीतांजलि. उनको नोबेल प्राइज मिला था. किसमें मिला था भाई? लिटरेचर में मिला था. कौन सी ईयर में मिला था? 1913 में मिला था. अंडरलाइन करते जाओ. ये पोएम कौन से? ओरिजिनली दिस पोएम इज रिटन इन विच लैंग्वेज? पोर्तुगीज, फ्रेंच, जर्मन या बंगाली. 4 ऑप्शन है, पता होना चाहिए. ऐसे माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट करो. गीतांजलि अगेन, टैगोर ने ये पोएम कब लिखा था? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था. समझ में आ रहा है? एंड ये क्या है, पोएम क्या है? इट इज अपील टू गॉड. अंडरलाइन इट. ऐसे छोटे छोटे चीजों को अंडरलाइन करो. ठीक है. फिर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये पोएम क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ पोएम जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ये बताते हैं कि तुम लोग को विदाउट फियर, तुम लोग का हेड हाई होना चाहिए, यानी कि का सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी होना चाहिए. इसका ये मीनिंग है. वेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज फ्री का मीनिंग क्या है? नॉलेज सबके लिए अवेलेबल हो, ये इसका मीनिंग है. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी कि वर्ल्ड टुकड़ों में बटा ना हो. By narrow domestic wall, what is the meaning of narrow domestic wall? Narrow domestic wall is the division on the basis of religion, class, colors, and caste in societies between the countries in the world. तो ये meanings को भी तुम लोग को बाहर करना है. Question can be asked based on the meanings part. What is the synonym of tireless striving? Option A, forever broadening one's outlook. Option B, continuous efforts and struggle. Option C, both A and B. And option D, none of this. तुम लोग को पता होना चाहिए B ऑप्शन है कि continuous efforts and struggle. मैं कितने भी, कोई भी, मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ भी दोगे ना एज अ टीचर, आई कैन फ्रेम MCQ टाइप क्वेश्चन. उसके ऊपर मैं n नंबर ऑफ MCQs फ्रेम कर सकता हूँ. So while studying,
कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो उसे. इफ यू आर पेपर सेटर, तुम लोग अगर पेपर सेटर हो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करोगे? समझ में आ रहा है? किस किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करोगे ये सोचो. अच्छा मैं होता तो यहाँ पे मैं क्या करता था, सिनोनिम का भी क्वेश्चन फ्रेम करता था, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस भी फ्रेम करता था. ये जो साइड क्वेश्चंस है इसको भी मैं कवर कर लेता था, तो इसके जो आंसर्स है वो भी मैं एमसीक्यू में डाल सकता हूँ. तो ये बहुत इन डिटेल स्टडी करना है. वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि ऐसा देश हो. नाउ रविंद्रनाथ टैगोर इज थिंकिंग बिफोर इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश ऐसा हो कि लोग कैसे हो, ऐसा देश हो कि लोग ऐसे होने चाहिए, एक कंट्री ऐसा होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? पोएम में बताया गया है. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि लोग मेहनत करें, परफेक्शन ये एम होना चाहिए लोगों का. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन एंड नॉट स्लॉट्स इट्स वे. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन यानी कि क्या? लोग ओपन माइंडेड हो. इनटू द ड्रेरी सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड कस्टम जो हार्मफुल है वो खत्म हो जाए. माइंड जो है लेड फॉरवर्ड बाय दी एवर वाइडनिंग थॉट हो लोगों के, एंड इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम लेट माय कंट्री अवे. ये रविंद्रनाथ टैगोर इज प्रेइंग टू गॉड. माय फादर इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू गॉड. So he's praying to God by using the term my father, let my country awake. ठीक है, यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम, इनको इसको किस चीज से कंपेयर किया है? किस चीज से कंपेयर किया है? रीजन से, रैशनल थिंकिंग से. एंड ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट बोला गया है, यानी कि ओल्ड रिचुअल्स कस्टम्स दैट आर हार्मफुल. ड्रेरी यानी कि जो डल होता है, डेजर्ट. तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, रैशनल थिंकिंग, वो ड्रेरी डेजर्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं. तो ये था हम लोग का ओवरऑल पोएम के बारे में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. इंग्लिश वर्कशॉप के सारे क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लो, जितने भी है. ब्रीफ आंसर्स करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, किस तरीके से स्टडी करना है, नोट्स ओपन करना है, ये क्वेश्चन का आंसर देख लो कौन से लाइन में है. नॉट एक्चुअली नेसेसरी, बिकॉज एमसीक्यू में ये टाइप का आना चांस नहीं है, तो इसको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. हाँ, मैच द फॉलोइंग को कर लो. मैच द फॉलोइंग को मैं जो टिक कर रहा हूँ ना वो करते जाओ. ठीक है, इसको तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है, ये मीनिंग से. इन योर ओन वर्ड्स कर लो, इसके आंसर्स एक बार देख लो. यहाँ पे ओन रिस्पॉन्स है तो ये करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट इन द पोएम, प्रेजेंट सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन करना है. फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो करने हैं, बी पार्ट भी करना है. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच कैन बी आस्क्ड. क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज एप्लीकेबल फॉर दिस लाइन. alliteration, B repetition, C onomatopoeia, D paradox. अब हो गए कंफ्यूज. फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक को अच्छे से कर लो. ये जो क्वेश्चंस है अप्रिसिएशन वगैरह वो करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार अप्रिसिएशन रीड करो. तुम लोग को टाइटल, पोएट का नाम जरूरी है. पोएट के नाम पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में. राइम स्कीम ठीक है, तुम लोग को पता होना चाहिए. ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं. सेंट्रल आईडी एक बार रीड कर लो. व्हाई आई लाइक डिसलाइक पोएम करने की जरूरत नहीं है. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मत करो, चलेगा. नॉट नेसेसरी. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आर नॉट नेसेसरी फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जब एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है. और ये सब राइटिंग स्किल के एग्जांपल्स रीड करने की भी जरूरत नहीं है. 10 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है. फर्स्ट जो पोएम है उसमें कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? तुम लोग पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो. Raise your hand, everyone.
Hello, Yes, sir. Mohit. Sir, can they ask few features from appreciation? Means we used to write about poem, no? ओके सो अप्रिसिएशन में कुछ फीचर्स जो है वो पूछ सकते हैं, बट व्हाई आई लाइक पोएम एंड ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, तो ये करने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? Okay, sir. ये संस्कार। सर ये मुझे एक टोटली डाउट है सर, ये एग्जाम सभी बोर्ड्स के लिए है ना, तो इसकी डिफिकल्टी नॉर्मल स्टेट बोर्ड की वजह से होगी या सीबीएसई से हाई होगी? सभी बोर्ड्स के लिए लाइक सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, बट सबके पेपर्स अलग अलग। मतलब एक ही पेपर नहीं है? हाँ नो नो नो, उनका फिर सिलेबस अच्छा अलग है। है। दे हैव डिफरेंट वी सीबीएसई देखोगे तो दे हैव 2 टेक्स्ट बुक्स। उनकी फर्स्ट फ्लाइट नाम की एक मेन टेक्स्ट बुक है एंड सप्लीमेंट्री रीडर है उनको, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो वो टेक्स्ट बुक अलग है, उनका ग्रामर थोड़ा अलग है। दे हैव डिफरेंट राइटिंग स्किल, दे डोंट हैव दे हैव लेटर राइटिंग, बट उनको आर्टिकल राइटिंग, डायरी राइटिंग ऐसे टॉपिक्स है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग का जो स्टेट बोर्ड का पेपर होगा वो बहुत इजी होगा, बट कुछ क्वेश्चंस, देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस व्हिच विल बी पर्पसली आस्क्ड। जो लोग 90 एंड अबव परसेंटेज वगैरह जो स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो काफी टफ होंगे। ओरल पेपर इजी होगा, बट कुछ क्वेश्चन जानबूझ के होंगे, बिकॉज एक क्रीमी लेयर मिलेगा। ओके, तो वो क्रीमी लेयर किस लिए मिलेगा? जिनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये मेन पर्पस है। तो कुछ ही लोग चाहिए उनको जो उस लेवल से ऊपर जाए एंड अपने मर्जी से कॉलेज सिलेक्ट कर सके। बाकी तो तुम लोग को पता है, इट इज ऑप्शनल। हेलो और सर। Hello, सर sir. कौन से क्वेश्चंस विचार पूछेंगे उसका कोई मतलब कुछ पता चला है क्या? गाइडलाइंस मतलब राइटिंग्स। हाँ सून मैं तुम लोग को सेकंड या थर्ड सेशन में क्लियर कट आइडिया देने वाला हूँ कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग जनरल फर्स्ट लेक्चर हम लोग सर का साइड में दिए हुए मीनिंग्स भी आ सकते हैं लेसन के। सॉरी, मीनिंग्स, क्वेश्चन मीनिंग्स आ मीनिंग। सकते हैं, बट ऑब्वियसली मीनिंग्स करना है तुम लोग। मैं तुम लोग के लास्ट सेशन में तुम लोग को बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें करने वाले हैं, तुम लोग उसका लिस्ट देने वाला हूँ। डोंट वरी। यस मुझे Sir, in that circular, but it is written that Maharashtra State Board syllabus is considered for all boards. महाराष्ट्र We means the CET is only based on Maharashtra State Board syllabus. Even if students are from CBSE, they have to consider State Board syllabus. हाँ सर, सबको एक ही टेक्स्ट बुक है। हाँ बरोबर। एक ही पेपर है, Yes, sir. एक ही पेपर है. सो इट कैन बी बेस्ड ऑन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस, यानी कि जो एमसीक्यू टाइप टेस्ट जो है वो उस मेथड में, उस पैटर्न में बाकी लोगों को भी आने वाला है। बट तुम लोग का जो पोर्शन है, सिलेबस है, वो तुम लोग स्टडी करोगे। बट ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी सीबीएसई और आईसीएसई, तुम लोग अपना पोर्शन स्टडी करोगे। अब तुम लोग का सिलेबस में क्या मेंशन किया है, अभी सर्कुलर तुम लोग देखोगे, पीडीएफ सबको मिला है। पीडीएफ में क्या लिखा गया है कि तुम लोग को जो सिलेबस है विच वाज प्रिस्क्राइब्ड, ओके, दैट प्रिस्क्राइब सिलेबस के बेसिस पे पूरा टेक्स्ट बुक, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Are you getting? So what I said, तुम लोग को फोकस, why I said कि 3 days ग्रामर को देना है, बिकॉज ग्रामर ये कॉमन है एलिमेंट। आर यू गेटिंग? कॉमन एलिमेंट क्या है तुम लोग की तीनों बोर्ड्स में, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, दिस इज द कॉमन एलिमेंट ग्रामर। ग्रामर तीनों बोर्ड्स में है, तो इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि तुम लोग टेक्स्ट बुक पे ध्यान नहीं दोगे। अगर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से आ गया तो क्या करोगे ऑन द स्पॉट? What you will do? I know that you have idea about textbook chapters, but preparation is your duty, right? सब कुछ प्रिपेयर करना तुम लोग की ड्यूटी है। When they have not prescribed exactly, क्या बोर्ड ने exactly प्रिस्क्राइब किया कि ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आने वाला है, ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब किया है? No, sir. नहीं सर। No, not in any circular. कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं आया जिसमें तुम लोग को चैप्टर्स मेंशन किए हो। तो व्हेन चैप्टर्स आर नॉट मेंशन, पूरा फोकस ग्रामर को दो। बचा Sir, हुआ जो in पार्ट that है, circular, it is written that deleted syllabus not going to come. रिपीटेड सिलेबस ना। Sir, no, which is cut only for our academic year. हाँ, तो दैट इज ओमिटेड पोर्शन, राइट? तो ओमिटेड पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, बट
पूरा बाकी की तो चैप्टर्स है, बाकी की पोएम्स है, वो एक बार कर लो। But they can ask for like a surprise test. हो सकता है, तो मैं तो बोलूंगा हार्डली 3 चैप्टर्स ओमिट किए थे उन्होंने, 3 या 4 चैप्टर्स कर लो ना, कौन सी बड़ी बात है। इफ यू वांट मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो चैप्टर में है क्या, डोंट वरी। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज मैं इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देने वाला, ये बाकी का डिस्कशन नहीं करूंगा। तो यूनिट 2, 3, 4 आई विल ट्राई टू कवर। उसके बाद हम लोग ग्रामर की तरफ जाएंगे एंड ग्रामर का प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो सारे सेशंस अटेंड करो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम लोग ये सेशन से एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये हो सकता है या क्या हो सकता है, इसकी आइडिया मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। तो सारे लेक्चर्स जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टार्ट टू एंड अटेंड करना, बीच में चले मत जाओ बिकॉज देर इज नो यूज। तुम लोग को कुछ चीजें मिस करोगे बाद में एंड फिर तुम लोग को बाद में रियलाइज होगा अच्छा हाँ ये चीज मैंने मिस कर दिया, पता भी नहीं चलेगा। ये संस्कार। हाँ सर, आप बोल रहे थे इसलिए नहीं बोला। सर जो 3-4 चैप्टर ओमिट किए वो भी बहुत वैसे खतरनाक है। सॉरी, खतरनाक है? ओके, हाँ नो नो नॉट खतरनाक। तुम लोग एज अ स्टोरी रीड करो, एज अ फन एक्टिविटी रीड करो, लेजर टाइम में मस्त आराम से रिलैक्स मैनर में बैठ जाओ। रात को क्या करते हो? सोते टाइम कुछ नहीं, टाइम पास, यानी कि नींद नहीं आती होगी तो क्या करना है, वो चैप्टर्स, ओमिटेड चैप्टर्स रीड कर लो, फिर सो जाओ। वैसे भी नींद आ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। हरी बेटी, ये तो सर डोंट रीड इट चैप्टर सीरियसली, उसे एकदम सीरियसली मत लो कि अच्छा वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको ये क्वेश्चन है। ओमिटेड चैप्टर्स को लाइटली रीड करो एंड बाकी चैप्टर्स को फोकस करो। माय रादर इंटेंशन इज टू फोकस ऑन ग्रामर, ग्रामर में सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलो आगे के टॉपिक की तरफ जाते हैं। फर्स्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम लोग को पता चला किस तरीके से अंडरलाइन करना है रेड पेन से, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रेड पेन से अंडरलाइन कर देना। सेम मेथड यू विल यूज फॉर सेकंड चैप्टर में। तुम लोग को इन शॉर्ट स्टोरीज बता रहा हूँ, ठीक है? हर एक चैप्टर में क्या है उसका सिनॉप्सिस बता रहा हूँ। जो लोगों ने लेक्चर या जो भी चीजें मिस किया है दे माइट बी नोइंग कि अच्छा ये हुआ था, एंड दोज हु हैव अटेंडेड एंड दोज हु आर नोइंग दिस पर्टिकुलर स्टोरी, रैपिड रिवीजन होगा उनके लिए। सेकंड चैप्टर इज द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी में क्या होता है, तो रस्किन बॉन्ड का ये इन्फॉर्मेशन रीड करो, अंडरलाइन व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट, बर्थ डेट, डेथ डेट जो भी है वो अंडरलाइन करो। हर एक चैप्टर का नाम एंड हर एक चैप्टर का राइटर या ऑथर पता होना चाहिए, उनकी खासियत, उनके फीचर्स या उन्होंने जो भी किया था लाइफ में ये पता होना चाहिए। फिर तुम लोग चैप्टर को रीड करते जाओ एंड जो भी रेड पेन से वो मार्क करते जाओ। वन रीडिंग, फर्स्ट टाइम रीडिंग इज इसेंशियल। 2-3 बार रीड मत करो चैप्टर को, फर्स्ट टाइम पूरे फोकस से, विथ फुल फोकस वन रीडिंग ही करो। मैं तो नहीं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि 2-3 बार उससे रीड करते बैठो, डोंट वेस्ट टाइम। बेटर इज एक ही बार रीड करो पूरे फोकस के साथ एंड जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो रेड पेन से अंडरलाइन कर, बाद में चाहिए तो रेड पेन से अंडरलाइन किया वो देख लो एक बार इफ यू वांट। नहीं भी देखते हो तो भी तुम लोग के माइंड में वो फिट हो जाएगा। तो इस स्टोरी में होता क्या है, देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस पर्टिकुलर स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स है, वन इज अनिल एंड देयर इज अनदर कैरेक्टर जिसका नाम पूरी स्टोरी में नहीं बताया हुआ, ठीक है? वन इज अनिल। अनिल एक काफी यंग लड़का होता है जो कॉलेज गोइंग होता है, ऐसे तुम लोग मान लो। तो एक यंग लड़का एंड दूसरा पर्सन जिसका नाम हमें नहीं बताया हुआ है, बट इन दिस स्टोरी वो एक चोर है। दिस इज थीफ स्टोरी। तो एक चोर है वो, तो वो क्या करता है अपना नाम हर बार चेंज करता रहता है। इज चेंजिंग हिज नेम एवरी टाइम, व्हाई? टू एस्केप फ्रॉम पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अंडरलाइन करते जाओ इन पार्ट्स को। इनका एज पूछा जा सकता है कि अनिल का एज क्या था। सो वो थीफ था हरी सिंह, जिसने अपने आप को हरी सिंह बताया था, वो थीफ था। बट एंड दो ओनली 15 आई वाज 15 एज हरी सिंह का है। जो कैरेक्टर का नाम नहीं बताया वो इसका एज कितना है, 15 है, यानी कि हरी सिंह का एज 15 बताया एंड अनिल का एज कितना बताया, 25। इसको अंडरलाइन करो रेड पेन से। ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अंडरलाइन करना है। तो वो कैसा था, टॉल था, लीन था, फेलो था, ये सारी चीजें। एक दिन क्या होता है, हरी सिंह जो चोर है, जो थीफ है, जिसने अपना नाम किसी को नहीं बताया, एवरी टाइम ही इज चेंजिंग हिज नेम। व्हाट ही इज डूइंग, he is changing his name every time, but now this time he kept his name as Hari Singh. He considered his name as Hari Singh. वो अपने आप को हरी सिंह बताता है। अनिल इज वॉचिंग रेसलिंग मैच एंड वो आके उसे बताता है, मैं
he wants to flatter अनिल, जो एक लड़का है, यानी कि उसके पास वो रह के क्या कर सके, चोरी कर सके. His intention is to steal money. ये वर्ड काफी की टर्म है कि उसको, इसका इंटेंशन है कि पैसे चोरी करना. अनिल उसको अपने घर में लेके जाता है, कन्विंस करता है अनिल को कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, ये करूंगा. अनिल says that I can't pay you. He says it's okay. What I will do, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा. सेम स्टोरी सीबीएसई को भी है. 10 सीबीएसई को भी सेम स्टोरी है, द थीफ स्टोरी. तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा एंड तुम क्या करना, मुझे रहने के लिए जगह देना. तो ना दोनों में फ्रेंडशिप होता है. हरी सिंह रोज मार्केट में जाता है, ही इज बाइंग डेली, दैट इज डेली सप्लाईज. वो ग्रोसरी वगैरह परचेस करने के लिए आता है एंड ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी. 1 रुपए का प्रॉफिट चुपचाप से 1 रुपये अपने खींचे में डाल देता है एंड दिस वे ही इज मेकिंग प्रॉफिट. ठीक है. तो हरी सिंह जो चोर है वो इस तरीके से घर में घुस के क्या कर रहा है, चुपचाप से 1-1 रुपया रोज कमा रहा है. अनिल माइट बी हैविंग आइडिया बट डजंट मैटर. अनिल शायद मैगजीन के लिए कुछ लिखता था एंड उससे इस तरीके से पैसे आते थे. अनिल अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट. ये जो फ्रेजेस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो अनिल इस तरीके से पैसे कमाता है. एक दिन अनिल ने पैसे लाया, he knocked the door, he came and he said that I have earned today. मैंने कुछ पैसा अर्न किया है. हरी सिंह के जो आंखें वो चमकने लगते हैं and Hari Singh thought like this is the right time, I must steal his money. At night he saw that Anil has tucked his money under the pillow. At night when Anil is sleeping peacefully, what Hari is doing, Hari Singh goes near the pillow, he takes that money, he goes out of the house, starts running and running. Then he counts his money, कि पैसे काउंट करता है वो कितना पैसा रहता है वगैरह. तो उसे पता चलता है कि 600 रुपीज होता है इन 50s. 600 रुपया 50 के नोट्स होते हैं. तब उसे रियलाइज होता है कि हरी सिंह को रियलाइज होता है कि अनिल ने ही तो कैलकुलेट करना सिखाया है. पैसे किस तरीके से काउंट करे ये उसे पता नहीं था. अनिल ने ही सब कुछ सिखाया. अनिल taught him how to write numbers, how to add numbers, how to write sentences, how to write his name, how to calculate. ये सारी चीजें अनिल ने सिखाई थी. how to prepare tea. वो जाता है लखनऊ एक्सप्रेस के लिए भागते भागते स्टेशन की तरफ, बट ही couldn't catch the train. वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाया बिकॉज उसके माइंड में सारे थॉट्स आते कि अनिल did lot of things for him. He comes back, he goes to a मैदान, वहां पे रेनफॉल होता है, उसके जो पैसे वो गीले हो जाते हैं. Then he decides to return back to Anil's house. अनिल के घर में वो रिटर्न जाएगा ना, अनिल को बता देगा सारी चीजें. चुपचाप से घर में जाता है, पैसे अनिल के पिलो के नीचे रख देता है and he goes to sleep. Early morning, Anil, when Hari Singh wakes up, what happens? Anil is holding a cup of tea and he says that take this. So he gives him money and एक 50 रुपये का नोट देता है. When Hari Singh takes that money, he realizes that the note is damp. नोट जो होता है वो वेट होता है, गीला होता है. And then he realizes the entire situation. रात के टाइम पे बारिश हुआ था, उससे वो नोट गीला हुआ था. ये सारी चीजें उसको याद आती है. Anil says that I will pay regularly and there is a realization feeling. हरी सिंह को रियलाइज होता है कि वो चोरी करने के लिए आया था, यहाँ पे एक चोर बन के आया था एंड जो भी उसने किया वो गलत किया. तो अ फीलिंग ऑफ रियलाइजेशन एंड फीलिंग ऑफ रिग्रेट इज एक्सप्लेन इन द चैप्टर. काफी ब्यूटीफुल चैप्टर है, थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉण्ड. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि उनका एज, उनके फीचर्स, हरी सिंह जो नेम है वो, यू कैन फीड मी और नॉट, कौन सी चीजें हरी सिंह, अनिल वाज टीचिंग टू हरी सिंह, ये सारी चीजें अंडरलाइन करना. ऐड, हाउ टू राइट सेंटेंसेस, ऐड नंबर्स, इनको रेड पेन से अंडरलाइन करते जाओ. फ्रेजेस लाइक फिट्स एंड स्टार्ट्स वगैरह इनको अंडरलाइन करो. ठीक है. कौन सा एक्सप्रेस था, लखनऊ एक्सप्रेस था. कब टाइम क्या है, 10:30 वाला टाइम है, इनको अंडरलाइन करो. 600 रुपीज थे 50s में, इनको अंडरलाइन करो. ऐसे करते करते अंडरलाइन करते करते जाना. देन मैदान, चिली, ये सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करो. ठीक है. स्पिरिट रोज, अंडरलाइन इट, दैट्स इट. वन टाइम रीडिंग करना है चैप्टर का. चैप्टर को ज्यादा वेटेज मत दो, चैप्टर्स एंड पोएम को ज्यादा वेटेज मत दो, ग्रामर की तरफ फोकस करो. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। ऑन विंग्स ऑफ करेज, ये चैप्टर ओमिटेड था, फिर भी मैं तुम लोग को आइडिया देने वाला हूँ कि इस चैप्टर में दिया गया। ध्यान से सुनो, so that afterwards if you are reading it for the first time and the last time, doesn't matter, टेंशन लेने की जरूरत है, yes or no? I'm allowing you to speak. थोड़ा सा रिस्पॉन्स आएगा, you can speak. Have to worry or not? No, sir. No, sir. Okay. बस दो जन के नो भी आगे काफी हो। चलो 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज, ये चैप्टर क्या है? इस चैप्टर में द एंटायर चैप्टर इज अबाउट एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह। एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह के ऊपर ये टाइप ऑफ बायोग्राफी। तुम लोग देख सकते हो ये इमेज, इस इमेज को देख सकते हो, ही वाज अ पर्सन एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह। तो इनके पूरे लाइफ में इनके जो भी प्रमोशंस मिले, तो ये पूरे चैप्टर में दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। स्टार्टिंग में ये बताया गया कि एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह क्या थे, तो एक एयरफोर्स मार्शल थे। He was hero and he took a lead in Indo-Pak War, which was fought in the year 1965. वो हाईएस्ट पोस्ट पे थे मार्शल के, एक आर्मी 5-स्टार फील्ड मार्शल। सी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में तुम लोग देखोगे तो 5-स्टार ऑफिसर्स रैंकिंग तक पहुंचना इट इज डिफिकल्ट टास्क, but Air Force Marshal Arjan Singh during that particular period was only the person along with 2 other members who got 5-star ranking, जिनको 5 स्टार मिले। तुम लोग को पता होगा कि पुलिस जो होते हैं उनके भी शोल्डर पे क्या होता है, स्टार्स होते हैं। उससे पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट या डेजिग्नेशन पता चलता है। जो कांस्टेबल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, ब्लू कलर के रिबन्स होते, देखा होगा। इस तरीके से जो ऑफिसर्स होते हैं उनके स्टार्स होते हैं, उससे उनकी डेजिग्नेशन पता चलती है। तो इस तरीके से ये एक एपिटोम थे, यानी कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे। उनको फॉर्मर फोर्स मार्शल यानी कि वाइस चीफ ऑफ आईएफ कपिल काक ने बोला था कि एक ज्वेल है, एक ज्वेल पर्सनालिटी है। सैम हॉर्मुज जी, फ्रामजी जमशेद जी, मानेक शाह, केएम करियप्पा, इनके साथ इनको फेलिसिटेट किया गया था। इन्होंने बहुत सारे प्लेन्स चलाए थे एंड ग्नैट्स एंड एम्पायर्स नाम का एक प्लेन है, वो भी उन्होंने चलाया था। 1944 में जब वॉर हो रहा था तब उन्होंने लीड किया था। डीएफसी नाम का, डीएफसी डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस नाम का अवार्ड उन्हें मिला था, यानी कि मेडल मिला था। एक मेडल है, ठीक है, दिस इज वन मेडल। एंड पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म भूषण कुछ। सुप्रीम अलाइड कमांडर बने वो। उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया है कि सिंह ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे। तो 15 अप्रैल 1919 में लालपुर फैजलाबाद पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे। मॉन्टगोमेरी में उनका एजुकेशन हुआ था, ठीक है। एंड नाउ यू नो द स्टोरी ऑफ पार्टीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन की स्टोरी तुम लोग को पता है। तो ये पहले एक ही पार्ट था, तो इसके लिए यूज किया है। फिर उन्होंने वेस्टलैंड वापीटी बायप्लेन्स चलाया था, एक टाइप ऑफ प्लेन है ये, ठीक है। तो एक तरीके से प्लेन है, बहुत सारे प्लेन्स चलाए उन्होंने। डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस जैसा मेडल मिला उनको। तो रॉयल स्टाफ कॉलेज में उनके लिए, उनको प्रमोशन के लिए वहां पे वो ट्रेनिंग के लिए गए। फिर एओसी इन सी उनको रैंकिंग मिला। फिर आगे आगे अलग अलग रैंक्स है, वो नोट्स में तुम लोग को देखना है कि रैंकिंग कौन से उनको मिलते गए। तो अलग अलग रैंक्स बताए गए। फिर सीएस मिला। सीएस क्या होता है, व्हाट इज सीएस? सीएस इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ऐसे करते 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 वो क्या बन गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बन गए लास्ट में, रिटायरमेंट के टाइम पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990 तक। एंड फिर इसके साथ जनवरी में 2002 मेकिंग हिम एज द फर्स्ट ओनली 5-स्टार ऑफिसर वो बने इन द इंडियन एयरफोर्स। तो इनके बारे में एक ओवरऑल व्यू दिया है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज है इंग्लिश वर्कशॉप को एक बार देख लो। सेकेंड एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट एक्टिविटी में तुम लोग को पोस्ट एंड डेजिग्नेशंस मिलेंगे। क्वालिटीज एक बार देख लो, दैट्स इनफ। बाकी तुम लोग को इंग्लिश वर्कशॉप देखने की जरूरत नहीं, चैप्टर को एक बार रीड कर लो, एक ही बार रीड करो, ज्यादा बार नहीं। इसका इंग्लिश वर्कशॉप एंड वार्मिंग अप नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसका ओमिटेड पोर्शन का, ठीक है। ऑल द वर्ड्स स्टेज इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें 7 स्टेजेस बताए गए। विलियम शेक्सपियर के बारे में इंफॉर्मेशन रीड करो। फिर फर्स्ट स्टेज इन्फेंट स्टेज था, जिसमें एक बच्चा क्या करता है, तो लाइफ यहाँ पे, सॉरी,
ऑल द वर्ल्ड स्टेज यानी कि ये पूरा वर्ल्ड स्टेज की तरह है जिसमें मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स की तरह है, यानी कि एक्टर्स की तरह है। हम लोग की लाइफ में हम लोग को बर्थ होता है, हम लोग की लाइफ में हमारा डेथ भी होता है। तो जैसे एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेज पे आते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं, वैसे ही हम लोग हमारे लाइफ में आते हैं, हमारा बर्थ होता है, वी आर परफॉर्मिंग समथिंग, वी आर प्लेइंग आवर पार्ट एंड देन वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। सो हम लोग को कभी ना कभी एक टाइम ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर 7 स्टेजेस होते हैं एक पर्सन के, जिसको पार करने के बाद एक ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है। पहला स्टेज होता है इन्फेंट स्टेज, जिसमें एक छोटा बच्चा मेवलिंग करता है एंड प्यूकिंग करता है, ठीक है। दूसरा स्टेज जो होता है उसमें वो बच्चा स्कूल बॉय होता है जो वाइनिंग करता है, यानी कि कंप्लेन करता है, एंड वो कंप्लेन करते करते सैचल लेके मॉर्निंग में स्लोली स्लोली चलते हुए स्कूल की तरफ जाता है। थर्ड स्टेज जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन है, इन्फेंट स्टेज होता है, फिर स्कूल बॉय स्टेज होता है, देन लवर स्टेज होता है, फिर ऐसे अलग अलग स्टेजेस है। फिर बियर्डेड मैन स्टेज है, फिर उसका अलग और एक स्टेज है, और एक स्टेज एंड और एक स्टेज। लास्ट में पर्सन हैज चेक सेकंड चाइल्डिशनेस, ये स्टेज है, यानी कि ओल्ड एज स्टेज है, जो 7th स्टेज, ठीक है। वैसे 7 स्टेज पार करके यहाँ पे साइंस आइज, साइंस स्टेज, साइंस, ये सारी चीजें होती है, यानी कि विदाउट। तो पहला स्टेज इन्फेंट स्टेज एंड लास्ट स्टेज को कंपेयर किया गया है कहीं ना कहीं। तुम लोग को इसके एक्टिविटीज देखने हैं। फर्स्ट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। सेकंड भी करने हैं, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को पूरा पोएम का आइडिया दे देगा कि पूरे पोएम में क्या दिया हुआ है। तो ये रोल्स एक बार देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कौन से रोल्स है एंड उनके क्वालिटीज देख लो। सिर्फ इतना भी देखोगे ना, ये जो सेकंड एक्टिविटी है ये भी देखोगे तो पूरा पोएम समझ जाओ, ठीक है। तो इसका सेकंड एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर थर्ड एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेकंड, एंड थर्ड फोर्थ एक्टिविटी को कर लो एक बार, दैट्स इनफ, काफी है इस पोएम के लिए। सेकंड एक्टिविटी, एक बार पोएम को रीड करना है, अप्रिसिएशन को रीड करते हो नहीं करते हो इट्स योर चॉइस। फिगर ऑफ स्पीच को रीड करना है, ठीक है। मैंने रियल एकेडमी के ऐप पे फिगर ऑफ स्पीच का चार्ट अपलोड किया है, ठीक है। वो चार्ट को रीड कर लो, डाउनलोड इट एंड रीड इट, उसको रेफर करो फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए। पहले फिगर ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एंड देन रीड दैट चार्ट। फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड सेशन में भी चैप्टर्स एंड पोएम का डिस्कशन होगा। थर्ड सेशन जो होगा वो ग्रामर का होगा। एनी डाउट? कोई डाउट है? यू कैन आस्क योर डाउट्स नाउ। तुम लोग अपना कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, पूछ सकते हो। सेकंड सेशन अटेंड करो। सेकंड सेशन में हम लोग पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे एंड पोएम भी। चैप्टर एंड पोएम एग्जाम में आने के चांसेस कम है, ग्रामर को ज्यादा फोकस करने वाले। थर्ड सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम लोग ग्रामर को स्टडी करेंगे। नो डाउट्स? यू कैन स्पीक, नो प्रॉब्लम। Considering no doubts, I am ending up this session. Next session attend करना, next session आगे की chapters and poems पे होगा, and third session grammar पे होगा। ग्रामर का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एंड फोर्थ सेशन अगर होगा तो वी विल प्लान MCQ टाइप मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे। लेट्स सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम एंड गुड बाय।